Hello, hello, champs. Hope you all doing well and not moving outside your homes. You well aware of this corona pandemic lockdown every person of the world in their homes. So this is very deadly, as you well aware of it. So follow the stricter rule and be in your home. And before this, we have our discussions. We well aware of that classes is not going on, the school are closed down, everything is just static. So this is your you are promoted in class 10th. Very congratulations to all of you. And this year is going to be very crucial for your whole life, because the 10th result is very important for your whole education in the means whole education in your life. Okay, so this is your SST class. You well aware of this. We are going to discuss the history chapter first in this video lecture. So don't worry about this. We are going to take care of your means study. Like this, we are what making videos and delivering to you. So don't worry about it. Okay, so history. Before starting the chapter first, we have some discussion related to the syllabus, what we are going to learn in the syllabus of your class 10th history provided by the NCERT based on CBSE pattern. So history first. Okay, the NCERT talks about the section. In your whole history book there is 3 sections. How the CBSE mentioned it as the theme. Theme means there are 3 themes. Theme first, in which total 3 chapters are there, first, second, third, and this themes talks about nationalization across the globe. Okay, in this nationalization means what? How the whole world nationalize, how the whole world learn the modern society as we have today. दुनिया कैसे सीखी कि क्या है डेमोक्रेसी, क्या है सोसाइटी, नेशन क्या है, स्टेट क्या है, नेशन स्टेट क्या है, ये सारी चीज़ें इवॉल्व कैसे हुई, वेरी क्रूशियल, वो बहुत पहले से ही है. अभी हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं कि कैसे स्टेट थे पहले, फिर नेशन बने, फिर नेशन स्टेट एज द मॉडर्न वी हैव. ठीक है, द थिंग्स वी हैव टुडे, वी आर नेशन कॉल्ड इंडिया, बट दिस इज नॉट एज अ नेशन, इट इज अ नेशन स्टेट. ये सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं अभी हम देखते हैं. तो नेशनलाइजेशन, दुनिया के क्रॉस नेशनलाइजेशन की फीलिंग कैसे आई, हाउ द होल वर्ल्ड गेट नेशनलाइज्ड, हाउ द होल वर्ल्ड लर्न द मॉडर्न सोसाइटी एज आर वी टुडे. ठीक है, ओके. तो फर्स्ट चैप्टर टॉक्स अबाउट द नेशनलाइजेशन in rise of nationalization in यूरोप. आप जानते ही हैं मॉडर्न सोसाइटी का क्रैडल है यूरोप. इन एवरीथिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इज देयर, ग्लोबलाइजेशन वाज देयर, एवरीथिंग मींस नेशनलाइजेशन वाज देयर, मींस फर्स्ट डेवलप्ड सोसाइटी जो आज हम देखते हैं सारी चीजें शुरू हुई यूरोप से. उसके पहले इंडिया वाज देयर. वो डिफरेंट सिचुएशन है. प्रेजेंट सिनेरियो इज व्हाट the world as we see today started from the Europe. The second chapter is nationalization या national movements in Indochina. Two word is there, Indochina. Indochina जब भी हम बात करते हैं, it's absolutely not related with the India and China. It is the 3 countries in Far East, means southeast of the Asian nation. The first one is Vietnam, Cambodia and Laos. These 3 countries is known as the Indochina. ये बहुत पुरानी मीन्स वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कॉन्सेप्ट है, इनको इंडोचाइना बोला जाता था. मीन्स लर्न दिस, इंडोचाइना जब भी कहीं आता है, इट्स एब्सोल्युटली नॉट एसोसिएटेड विद इंडिया और चाइना. It's just what these 3 countries in south east of the Asia. ठीक है. The third is what nationalism in India. ठीक है, ये चैप्टर एकदम रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है, बट what we are not going to learn this chapter because this is excluded from your syllabus. This chapter
ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये चैप्टर एक दूसरे से सब रिलेट करते हैं, क्योंकि नेशनलिज्म यूरोप में कैसे हुआ उसका जाहिर सी बात है इम्पैक्ट कहाँ होगा, इंडिया में कैसे हुआ, सारी चीजें यहाँ हुई। इससे हमने लर्न किया कि हाउ द गांधी वॉज देयर, हाउ द नेहरू वॉज देयर, बाल गंगाधर तिलक वॉज देयर, हाउ दे गेट दिस आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हुई, उसको इम्प्लीमेंट किया इन लोगों ने, कुछ नए मिर्च मसाला लगा के, यू नो ऑल दिस थिंग। हमने क्या किया, उस चीज को अपने यहाँ थोड़ा कॉपी किया, फाइनली वी गॉट सक्सीड एंड वी गेट इंडिपेंडेंट इन 1947। द theme second talks about the livelihood, the economy, the society. Livelihood, economy, societies, ये सारी चीजें दुनिया में कैसे इवॉल्व हुई, सोसाइटीज, ये सारी चीजें दुनिया में। हाँ, द वन इंपॉर्टेंट थिंग, कंसीडर इट एज वी आर डिस्कसिंग दीज थिंग्स इन योर क्लास। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, ठीक है, आप अपनी बुक खोल ले, बुक खोल के बैठें, ये कंसीडर करें कि ये एज आपका क्लास चल रहा है, क्योंकि जो इस वीडियो में कवर होगा वो फिर क्लास में नहीं कवर होगा। हम उसको कंसीडर एज करेंगे कि वो चैप्टर क्लोज है, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी कोताही मत बरतिएगा, ठीक है। बी सीरियस, दिस इज क्लास 10, ठीक है। अब ऐसे आई माई करने से काम नहीं चलेगा, तो कीप फोकस ऑन योर स्टडी, ओके। थीम सेकेंड एंड नोट डाउन दिस थिंग, जैसे आप क्लास में यूजुअली करते हो, मैं लिखता हूँ, आप उसके नोट्स बनाते चलते हो, तो वैसे ही हम यहाँ करेंगे। एकदम आपकी क्लास है, बस क्या है, बच्चे यहाँ पे नहीं है सामने, अदरवाइज इज सेम, ओके। मुझे भी थोड़ा ऑड लग रहा है ऐसे कैमरा रख के सामने बात करना, इज ऑब्वियसली ऑड, बट स्टिल आई एम डूइंग फॉर यू, ओके। थीम सेकेंड लाइवलीहुड, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। फर्स्ट चैप्टर, पहला जो चैप्टर है वो क्या बात करता है, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। दुनिया ग्लोबलाइज कैसे हुई, यू नो, एक बहुत ही फेमस लाइन में बोलता था क्लास 9th में, क्लास 10th में, सबसे ही बोलता हूँ कि क्या, इकोनॉमी इज द मदर ऑफ पॉलिटी। व्हाट डज दिस मीन्स, जहाँ पे इकोनॉमी डेवलप होगा वहीं पे ही पॉलिटी आएगी। सिंस द वैदिक टाइम, एज वी गो इन एंशिएंट इंडिया, वी सी देयर व्हाट, कि मतलब जब वहाँ पे इकोनॉमी डेवलप हुई तब राजा रानी का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही फेमस लाइन है, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, किसने कहा था, इज वेल नोन इकोनॉमिस्ट, नोबेल प्राइज विनर, अब उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, बट ही सेड, वेल सेड, इकोनॉमी इज द मदर ऑफ पॉलिटी। जहाँ पे इकोनॉमी होगी वहीं पे पॉलिटिक्स डेवलप होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज, इकोनॉमी डेवलप हुई, कैसे डेवलप हुई, कैसे वर्ल्ड ग्लोबलाइज हुआ, कैसे एसोसिएट हुआ, कैसे सारी चीजें इवॉल्व हुई, जो आज हम मॉडर्न सोसाइटी में एज वी सी टुडे, कैसे हुआ ये सब। अभी देखो कोरोना चल रहा है एंड वी ऑल लर्न कि क्या है, जितने भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक एंड फिच, मूडी, बहुत सारी ऐसी हैं, एवरीथिंग इज डाउनग्रेडिंग, एवरी कंट्री इज क्रेडिट रेटिंग, सारी चीज़ों का GDP ग्रोथ क्या बोल रहे हैं, लो हो जाएगा, ये हो जाएगा, स्लम, जापान का नेगेटिव जा रहा है, US का नेगेटिव जा रहा है, एवरी कंट्रीज का बहुत सारे ऐसे डेटाज आ रहा है। क्यों आ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज क्या हो गई है, ठप हो गई है, पूरी दुनिया एकदम ठप हो गई है, जाहिर सी बात क्या होगा, क्लोज होगा सब कुछ। तो वहां पे ये सारी चीजें बनी कैसे थी, इस चैप्टर में हम देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये हमारे लिए केस स्टडी है। आप देखोगे ये जो सिचुएशन है ये सालों साल तक अब याद किया जाएगा कि ऐसा सिचुएशन आया था जो पूरी दुनिया को ठप कर दिया था, और जिसको हम क्या कर रहे हैं, वी आर विटनेसिंग दीज थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न दिस, वी आर विटनेसिंग द सिचुएशन इन 2020, द कोरोना पैंडेमिक व्हिच मेक्स होल वर्ल्ड क्राई ऑन देयर फेट, इवन द ग्लोबल पावर क्राइम, ओके। तो वेरी इंपॉर्टेंट हुआ, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर क्या है, इसमें सेकेंड चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज कैसे
कैसे लगी? मॉडर्न सोसाइटी 17th सेंचुरी ऑनवर्ड हाउ द इंडस्ट्रीज गेट इवॉल्व इन यूरोप। वी वेल नो इंडस्ट्री कैसे, इंडस्ट्री सबसे पहले कहाँ यूरोप में आई, कैसे आई और फिर यूरोप से कैसे दुनिया में फैला। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द एरा ऑफ 17, 18 एंड 19th सेंचुरी, इवन द इंडिया इज गोइंग टू इज अंडर द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो जो 100 साल पहले या 150 साल पहले इंग्लैंड में हुआ, इंडिया इज विटनेसिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। हमारे यहाँ अब इंडस्ट्री लग रही है, सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे वर्क लाइफ एंड लेजर। इसका थर्ड चैप्टर है वर्क लाइफ एंड लेजर, मीन्स सुविधाएं क्या थी, ऑल्दो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। सो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, टोटल 4 चैप्टर में। थीम थर्ड में प्रिंट कल्चर। फर्स्ट चैप्टर लुक। पिछली बार हम लोगों ने ये चैप्टर लास्ट में पढ़ा, लेकिन जब इसे पढ़ा तो हमें रियलाइज हुआ ये चैप्टर साथ में पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रिंट चीज थी, वो जो प्रिंट कल्चर था, जो प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ, जो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, ऑल दीज थिंग्स जब ये आने शुरू हुए तब लोगों को एनलाइटनमेंट होना शुरू हुआ। जैसे हम लोग कितना बार डिस्कशन कर चुके हैं कि गैलीलियो वाज देयर एंड पूरी दुनिया पूरे लाइफ टाइम वो भागते रहे, उनका जब वो मरे उनका कोई देश नहीं था, वो भागते रहे अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस करते थे, बट दैट थिंग्स वाज अगेंस्ट द चर्च। जो रिलीजियस अथॉरिटी थी उसके अगेंस्ट में वो बोलते थे, जब बोलते थे तो सारी चीज़ें होती नहीं थी। और दूसरी बात ये थी कि कुछ ही लोगों को पता हो पाता था, पूरे सारे लोगों को पता नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि वो कल्चर नहीं था जो आज है, कोई मीडियम नहीं था लोगों को बातें बताने का। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। तो इस चैप्टर को और इस चैप्टर को और इस चैप्टर को, इसको हम साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि ये दोनों चैप्टर कैसे रियलाइज करता है, मतलब कैसे ये जो चीज़ है ये कैसे इग्नाइट करता है, ये सारी चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये टोटल इतने चैप्टर है हिस्ट्री में। फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, टोटल 5 चैप्टर हमें हिस्ट्री में पढ़ना है। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द राइज ऑफ नेशनलाइजेशन इन यूरोप। पहला चैप्टर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री, आप जानते ही हो, ये इकोनॉमी से भी रिलेटेड है, ये सोसाइटी से भी रिलेटेड है, कल्चर से भी रिलेटेड है, एवरीथिंग, सारी चीज़ें ये हैं जो आज मॉडर्न सोसाइटी हम देख रहे हैं उसका बेस है ये चैप्टर, कि कैसे मॉडर्न सोसाइटी बन गई, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, कैसे जो आज हम उसी में कैसे हम ये भी देखेंगे कि कैसे कोरोना आ गया डेफिनेटली, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम किसी को एक चीज़ गेन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हार्म हो रहे हैं हम अर्थ को, मदर अर्थ, व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर अर्थ, वी बर्निंग द अर्थ, हम कहीं ना कहीं उसे क्या कर रहे हैं, स्वाहा कर रहे हैं। तो एक कहीं हमें गेन हो रहा है तो कहीं हमें लॉस हो रहा है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। The first chapter is rise of nationalism in Europe। यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप सबसे पहले अपनी बुक अपने, ठीक है, टेबल के सामने खोल के बैठो, उसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर देखेंगे। देखो पहला ही चैप्टर स्टार्ट होता है, अभी हम पिछले साल भी देखे थे जब हम क्या पढ़ रहे थे, आपका पॉलिटी पढ़ रहे थे या कोई भी चीज़ पढ़ रहे थे, देयर इज अ केस स्टडी, मीन्स कोई चैप्टर स्टार्ट, एनसीईआरटी इज वेरी गुड इन इट्स डिज़ाइन। आप देखे थे पिछली बारी पॉलिटी में हम लोग खासकर कितना ज़्यादा डिस्कशन किए थे कि क्या था, जब कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो क्या होता है, उसके पहले केस स्टडी होती है। वैसे यहाँ भी है, क्लास 10th में ही, जाहिर सी बात क्लास 9th में था तो 10th में भी है, ठीक है। तो इस चैप्टर को जब आप स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे एक बड़ा सा पिक्चर आपको दिखेगा। अब वो पिक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता,
ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ इसके बारे में। फ्रेडरिक सोरियो,